Okay, first paper of JCAT MDMS is May 2016. So start with the first MCQs और I will try कि मैं सारे ऑप्शंस को रीड करूं ताकि इससे ये होगा कि 4 MCQ से आप रीड करेंगे तो इजीली आपको क्राइटेरिया ऑफ एक्सक्लूजन की बेस पे बाकी MCQs आप अच्छे से कर सकेंगे बिकॉज ये पेपर है ही टोटली रिवीजन बेस्ड. So first MCQs is what is the major route of elimination of anticholinergic drugs? Major route of elimination: hepatic, pulmonary, renal, GIT. So the answer is renal. Which drug along with hydrofonium chloride improves post-operative ileus? Bethanecol. Metoclopramide, omeprazole, ipratropium, bethanecol. Bethanecol has effect on the urinary and GI tract because it has muscarinic parasympathetic activity. So for the improvement of post-operative ileus along with hydrofonium chloride, bethanecol will be used. Most common site of gastrointestinal stromal tumor is 50 to 60% GIST tumor. Its most common site in 50 to 60% cases is stomach. Fourth MCQ is all of the following are Jones major criteria for rheumatic fever except Jones major criteria: arthralgia, carditis, subcutaneous nodules. These are all for the Jones major criteria except chorea. Its mnemonic is Jones, Jones, Jones. Joint involvement all look like heart, so myocarditis, nodules, subcutaneous nodules, erythema marginatum, Sydenham chorea. In minor criteria we have C से CRP raised, arthralgia, fever, elevated ESR, prolonged PR interval, anamnesis of rheumatism, leukocytosis. For the criteria for the diagnosis of this rheumatic fever. For the diagnosis of rheumatic fever, throat culture is taken. Growing GABHS or elevated ASO titers. 2 मेजर क्राइटेरिया और अगर 2 मेजर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिमेटिक फीवर का डायग्नोसिस बन रहा है. अदरवाइज 1 मेजर क्राइटेरिया अलॉन्ग विथ 2 माइनर क्राइटेरिया, 1 मेजर के साथ 2 माइनर क्राइटेरिया होगा तो वो रिमेटिक फीवर होगा. देन वी हैव द MCQ number 5. Which of the following diagnostic methods are not used for the differentiation of Staphylococcus aureus and epidermidis? Proteinase latex agglutination test, coagulase test, ASO titer, Manitoux test. So ASO titer is not used for the differentiation of Staphylococcus aureus and epidermidis. All others are used for its differentiation. These are the criteria. And then there is the Burkitt lymphoma. Burkitt lymphoma is associated with which of the following genetic changes? C mycin ट्रांसलोकेशन. T Burkitt के T से हमें याद रखना है कि C mycin की ट्रांसलोकेशन हो रही है इसमें. Then we have a student, pathology student is looking at a slide portion of healthy tissue in which he finds signal ring appearance of the cells. What kind of cells can they most likely be? तो जो सिग्नल रिंग अपेयरेंस होती है वो किस में होती है? एडिपोज टिश्यू में होती है. क्रोनिक गैस्ट्रिक लॉस टेंड्स टू कॉज. अच्छा, अगर क्रोनिक गैस्ट्रिक लॉस हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा? हाइपोक्लोरीमिकल क्लोसिस, हाइपरक्लोरीमिकल क्लोसिस एंड देन हाइपोक्लोरीमिक एसिडोसिस, हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस. तो हाइपोक्लोरीमिक एल्कोसिस होगा. हाइपोक्लोरीमिया इस वजह से हो रहा है क्योंकि जब क्रोनिक गैस्ट्रिक लॉस होता है तो इसकी वजह से पोटाशियम, HCl, वाटर, इन सारी चीज़ों का लॉस हो रहा होता है. जब क्लोराइड का लॉस हो रहा है तो हाइपोक्लोरीमिया की स्टेट हो जाएगी. बॉडी ब्लड में क्लोराइड आइंस कम हो जाएंगे तो उसकी वजह से हाइपोक्लोरीमिक हो जाएगा और बाइकार्बोनेट आयन अल्कली ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से हाइपोक्लोरीमिक अल्कलोसिस की पिक्चर हो जाएगी. Okay, after that we have the option. MCQ's number is 9. A final year student discusses a new patient with the consultant. Consultant orders to get CEA, carcinoembryonic antigen, done. What is the consultant checking for?
कंसल्टेंट चेकिंग फॉर, अच्छा CEA लेवल्स किस में होते हैं? कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में। एंड द ऑप्शंस आर पेंक्रेटाइटिस, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आर्काइडोसिस। तो ऑब्वियसली इसका हो जाएगा कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, जिसमें CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन के लेवल्स करवाए जाते हैं। Child with abdominal pain is suspected of having interceptions. Which of the following is true? तो इसमें से ट्रू बताना है। द कंडीशन अकर्स इन लेस देन 3 month olds in 70% of cases. Vomiting occurs early in presentation. Fever excludes interceptions as diagnosis. Current jelly red stools are pathognomonic. तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फर्स्ट ऑप्शन पे है इसमें है कि लेस देन 3 month एज है। एज लेस देन 3 month नहीं होती। 2/3 केसेस में लेस देन 1 year एज होती है। 1 year एज होगी। वोमिटिंग है, इसके ट्राई इसका ट्राई होता है इंटरसेप्शन का। तो वोमिटिंग जो है अर्ली प्रेजेंटेशन में नहीं आ रही, ट्राई में आती है वोमिटिंग, ब्लडी, डायरिया एंड प्रोक्सिज्मल एब्डोमिनल पेन। 3 चीज़ें हैं, वोमिटिंग होती है, ब्लडी स्टूल्स होते हैं एंड प्रोक्सिज्मल एब्डोमिनल स्टूल्स होगा। और जो पैथोजिनोमिक है ये क्यूरेंट जेली रेड स्टूल्स है। और ये वो बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है, हर जगह पे ये MCQs रिपीट हुआ है कि क्यूरेंट जेली रेड स्टूल्स होंगे इसमें इंटरसेप्शंस में। एंड देन वी हैव विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया हैं सिलियक गैंग्लिया, सुपीरियर मिजेंटेरिक, इन्फीरियर मिजेंटेरिक, दीज आर ऑल प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया। तो जो सर्वाइकल गैंग्लिया है ये प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया नहीं आता। बाकी सारे जो हैं ये प्री वर्टिब्रल गैंग्लिया में आएंगे, सिलियक से लेके सुपीरियर मिजेंटेरिक, इन्फीरियर मिजेंटेरिक गैंग्लिया। A young girl of 23-year age presented with abdominal pain, menorrhagia, and a 10-week size mass in the hypogastrium. What can be the most likely diagnosis? Ectopic pregnancy, ovarian cancer, pelvic inflammatory disease, fibroid uterus. तो जो मोस्ट कॉमन होता है सबसे पहले हमने उसका डायग्नोसिस बनाना होता है कि ये चीज़ मोस्ट कॉमनली हो सकती है, ना कि आप सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ को प्रेफर कर देंगे। तो मोस्ट लाइकली इसमें क्या होगा, 23 ईयर की एज में फाइब्राइड यूट्रस इज़ कॉमन, तो फाइब्राइड यूट्रस होगा। ठीक है। एंड देन 58-year-old मदर ऑफ 5 presents with breakthrough bleeding. She refuses endometrial biopsy due to fear of further bleed. What can be the other best non-invasive investigation done in this setting? ब्रेक थ्रो ब्लीडिंग का मतलब होता है कि सडन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। एंड द एज इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस सिनेरियो, एज इज़ 58 ईयर। नॉन इन्वेस्टिव इन्वेस्टिगेशन हमने बतानी है, तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन बतानी चाहिए जो नॉन इन्वेस्टिव तो उसने पूछ ही लिया है, साथ में यूज़फुल भी हो। तो ऑप्शंस हैं CT स्कैन एब्डोमेन विद कॉन्ट्रास्ट, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, एब्डोमेन पेल्विस एंड KUB, TVUS CT स्कैन एब्डोमेन पेल्विस विदाउट IV कॉन्ट्रास्ट। तो CT स्कैन को हम प्रेफर नहीं करेंगे, हम अल्ट्रासाउंड को प्रेफर करेंगे, जो कि कौन सा होगा, TVS स्कैन होगा। नेक्स्ट इज टॉपिक टू फोकस, जनरल OPD केसेस इन गायनियोब्स। गायनियोब्स के जो जनरल OPD केसेस हैं वो हमने प्रिपेयर करने हैं। A patient presents in OPD with vertical diplopia on downward gaze. You suspect damage to a nerve supplying an extraocular muscle. Which nerve would you look for? Abducent oculomotor, trochlear nerve, small connecting branch of the optic nerve. तो अगर वर्टिकल डिप्लोपिया हो रहा है डाउनवर्ड गेज पे तो उसमें इन्वॉल्व होगी ट्रोक्लियर नर्व O4। तो SO4 सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई कर रही है 4th ट्रोक्लियर नर्व। और 4th जो सुपीरियर ओब्लिक होता है उसकी वजह से हम नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो अगर सुपीरियर ओब्लिक डैमेज है और सप्लाई इसको ट्रोक्लियर नर्व कर रही है तो इस वजह से हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड गेज पे वर्टिकल डिप्लोपिया होगा। Superior oblique, supplying the superior oblique muscle causes diplopia, classically going downstairs with compensatory head tilt और compensatory head tilt के साथ। टॉपिक 2 LR6 SO4 R3 लेटर रेक्टस इज सप्लाइड बाय द 6th cranial nerve, सुपीरियर ओब्लिक को 4th cranial nerve सप्लाई करती है। रेस्ट 3 जो है वो रेस्ट जो होते हैं वो सप्लाइड होते हैं बाय द 3rd cranial nerve।
Third is oculomotor. Lateral rectus, sixth cranial nerve is abducent nerve. Superior oblique, fourth cranial nerve is trochlear, तो superior oblique को trochlear nerve सप्लाई करेगी. Rest all are three या थर्ड cranial nerve. Rest all remaining सबको ये सप्लाई कर देगी थर्ड cranial nerve. So if a muscle group is involved, it can only be oculomotor nerve damage. And if only one muscle is involved, it will be either abducent or trochlear nerve. Sixth nerve होगी या fourth nerve होगी. So always pay attention to the statement. और अगर ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व हैं तो आप उस सिनेरियो में पिक कर सकते हैं कि ये थर्ड क्रेनियल नर्व की वजह से हो सकता है. यू आर एग्जामिनिंग अ पेशेंट in your OPD. You want to examine inferior oblique muscle. What movement of the eye does it cause? Elevation plus lateral gaze, elevation plus medial gaze downward or lateral medial gaze. तो जो है inferior oblique muscle की वजह से हम अपनी आई बॉल की क्या मूवमेंट करवा सकती हैं? एलिवेशन और लेटरल गेज ना, तो ऊपर और बाहर की तरफ, ये हमारे पास इंफीरियर ओब्लिक मसल की वजह से है. जबकि नीचे और अंदर की तरफ जो है ये मूवमेंट करवाता है सुपीरियर ओब्लिक. तो हमें एक मसल को याद रख लें, लाइक इंफीरियर ओब्लिक. इंफीरियर का काम है अपोजिट, हमें याद रखना है कि इंफीरियर वाला ऊपर की तरफ देखने में हेल्प करता है, ऊपर और बाहर की तरफ. सो इट विल कॉज एलिवेशन एंड लेटरल गेज. इसके बाद है जी एक्स्ट्राओकुलर मसल्स का टॉपिक इन फोकस होना चाहिए. इन्फेक्शन ऑफ पाल्मर साइड ऑफ फिंगर टिप्स नोन एज. अगर फिंगर टिप्स की पाल्मर साइड इन्वॉल्व हो रही है तो इसका मतलब है, इसको कहते हैं फिलोन. जबकि जो पेरोनिकिया होता है ये नेल बेड का इन्फेक्शन होता है, जैसे नीचे बता भी दिया. तो फिलोन क्या होगा? फिंगर टिप्स की पाल्मर साइड की इन्फेक्शन को कहते हैं जी फिलोन. In your biochemistry lab, you are studying. Okay, so the MCQs number 17. 17 is, in your biochemistry lab, you are studying two drugs which act on different types of receptors but have antagonist action on each other. Your instructor tell you that they are glucagon and insulin. What type of antagonism are they showing? अच्छा, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन का हमने बताना है एंटागोनिज्म. इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट. तो जो ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन है, दीज आर फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट. ये चीज़ हमने याद रखनी है. इंसुलिन और ग्लूकागॉन फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है. क्वांटल डोज रेस्पॉन्स कर्व एंड आर यूज्ड इन फार्माकोलॉजी. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? Used to determine maximum efficacy of drugs. Maximum efficacy के लिए it is more precise than ordinary dose response curve. Used to determine statistical variation of maximum response to drug. Determines the therapeutic index of drug. तो इसके अंदर क्वांटल डोज रेस्पॉन्स कर्व जो है, इसके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ड्रग को डिटरमिन करने के लिए हम क्वांटल डोज रेस्पॉन्स कर्व को यूज़ करते हैं. जैसे एक सिंपल डोज रेस्पॉन्स कर्व भी होती है, ये है क्वांटल डोज रेस्पॉन्स कर्व. तो जो क्वांटल होगी वो थेरेप्यूटिक इंडेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ हो रही होगी. विच विटामिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन ऑफ कोफैक्टर्स के कार्बोक्सिलेशन के लिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के. आंसर है विटामिन के. विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स. विटामिन के इज़ द कोएंजाइम फॉर कार्बोक्सिलेशन. Vitamin K is the coenzyme for carboxylation of glutamine in post-synthetic modification of calcium binding proteins. अच्छा, इसको हम जल्दी जल्दी रीड करते हैं. स्टूडेंट इज स्टडीइंग कार्डिक साइकिल एंड कार्डिक प्रेशर वॉल्यूम लूप्स. S1 इज प्रोड्यूस इन विच फेज?
तो ये जो 4 हमारे पास साउंड्स आती हैं, S1 2 3 4, तो इन सब का हमें पता होना चाहिए कि किस फेज़ किस वजह से हो रही है। तो S1 में क्या होता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की फेज़ होती है। S1 इज़ प्रोड्यूस्ड इन विच फेज़, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रिमेनिंग diastolic filling, ejection, isovolumetric relaxation. S2 is by the isovolumetric relaxation. तो आपने याद रखना है S1 is by the isovolumetric contraction. 32-year-old patient is found to have calcification in right lung apex. He has history of pulmonary TB for which he took ATT for 9 months. Which type of calcification is this? When the serum calcium level is normal. Senile calcification, metastatic calcification, dystrophic calcification, hyperparathyroidism. Answer is dystrophic calcification. जो कैल्सिफिकेशन किसी डिजीज़ की वजह से हो रही होती है तो उसको कहते हैं जी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, और दूसरी टाइप होती है मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन। तो टीबी एक डिजीज़ है, तो डिजीज़ की वजह से हो रही है तो इसमें डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होगी। और इस सिनेरियो में इसने बता दिया कि राइट लंग एपिक्स के ऊपर कैल्सिफिकेशन हुई है एंड ही टुक ATT ट्रीटमेंट फॉर 9 मंथ्स। सीरम कैल्शियम लेवल्स आर नॉर्मल, कैल्शियम लेवल्स नॉर्मल है, ATT का ट्रीटमेंट फॉर 9 मंथ्स लिया और कैल्सिफिकेशन है राइट लंग्स की एपिक्स पे। अच्छा, तो इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। डिस्ट्रॉफिक डेपोजिशन सेकेंडरी टू नेक्रोसिस, और ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन लोकलाइज्ड होती है, सीन इन टीबी, क्रोनिक एब्सेस, फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस में, एब्सेस में, क्रोनिक एब्सेस में और टीबी के पेशेंट्स में डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो रही है। पेशेंट इज यूजली नॉर्मोकैल्सीमिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू इन दिस एमसीक्यूज कि पेशेंट नॉर्मोकैल्सीमिक होगा। मेटास्टेटिक वाइड स्प्रेड है, सीन इन प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म, सार्काइडोसिस, हाइपरविटामिनोसिस डी एंड हाई कैल्शियम फॉस्फेट प्रोडक्ट्स ऑफ रीनल फेलियर्स। कैल्शियम लेवल्स यूजली हाई होंगे एंड मोस्टली डेपोजिशन अकर्स इन द GIT। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन की डेपोजिशन GIT में होगी, जबकि डिस्ट्रॉफिक की उसने बता दी है। टीबी वाला सिनेरियो था तो उसमें कहाँ पे थी, लंग्स की एपिक्स पे। तो ये लोकलाइज्ड है, टीबी, क्रोनिक एब्सेस और फैट नेक्रोसिस में होती है। पेशेंट नॉर्मल कैल्सीमिक होगा। डिस्ट्रॉफिक मेटास्टेटिक के अंदर क्या डिफरेंस है, डिस्ट्रॉफिक नॉर्मल कैल्सीमिक होगा पेशेंट, मेटास्टेटिक में कैल्शियम लेवल्स हाई होंगे और डेपोजिशन इसकी GIT में हो रही है। सर्जरी डन टू ट्रीट एक्लेजिया। एक्लेजिया के लिए हम कौन सी सर्जरी करते हैं, स्लीगेस्टेक्टमी, हीलर्स मायोटमी, सर्जिकल एसोफेजेक्टमी विद प्राइमरी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, डायफ्राग्मेटिक मायोटोमी। तो एक्लेजिया के ट्रीटमेंट में जो सबसे पहले है, फर्स्ट लाइन ऑफ चॉइस है और जो इसका ट्रीटमेंट है वो है हीलर्स मायोटमी। हीलर्स मायोटमी कर देते हैं, मसल लूज़ हो जाता है इसमें, तो जिसकी वजह से वो एक्लेजिया उसका थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, इससे थोड़ा बहुत शायद ज़्यादा भी हो जाता हो। तो इसका ट्रीटमेंट है हीलर्स मायोटमी। A type 1 diabetic is diagnosed with oral candidiasis. Which medication would you choose among the following? तो टाइप 1 डायबिटीज़ का पेशेंट है, ओरल कैंडिडियासिस में फ्लोराइड माउथ गर्गल सोल्यूशन, निस्टेटन ओरल ड्रॉप्स, कोएमेक्सिक्लार पिल्स, इंजेक्टिबल फ्लूकोनाजोल। ओके, ये थे ऑप्शंस और आंसर है निस्टेटन ओरल ड्रॉप्स। B एंड D, बी में है निस्टेटन ओरल ड्रॉप्स और डी में है इंजेक्टेबल फ्लूकोनाजोल। हैव एंटी फंगल मेडिकेशन एंड फॉर अ लोकल फंगल इन्फेक्शन यू वुड नॉट यूजली गिव द IV ट्रीटमेंट ना, हाउएवर एक्सेप्शंस एग्जिस्ट। तो इस पेशेंट में हम क्या देंगे, निस्टेटन ओरल ड्रॉप्स देंगे। फ्लूकोनाजोल भी एंटी फंगल है बट इंजेक्टेबल है, तो इस वजह से हमने स्टार्ट में ही IV स्टार्ट नहीं करनी, तो हम इसको ओरल ड्रॉप्स देंगे। 24 है, रेफरेंस पॉइंट टेकन टू डिफरेंशिएट बिटवीन फेमरल एंड इंग्वाइनल हर्निया विद रिस्पेक्ट टू एनाटॉमिकल लोकेशन इज। एनाटॉमिकल लोकेशन के लिहाज से फेमरल एंड इंग्वाइनल में मिड इंग्वाइनल पॉइंट, प्यूबिक टुबर्कल, प्यूबिक सिम्फिसिस, एंट्रस पॉइंट ऑफ फेमरल आर्टरी इनटू लोअर लिम्ब। तो प्यूबिक टुबर्कल जो है ना उसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, और क्या होता है, इंग्वाइनल इज ऑलवेज अबव इंग्वाइनल लिगामेंट, फेमरल इज बिलो। तो प्यूबिक टुबर्कल को हम रेफरेंस लेंगे
और इंग्वाइनल लिगामेंट के लिहाज से क्या होता है, इंग्वाइनल अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट होता है और फेमरल बिलो होता है। 25 entrance point of saphenous vein into femoral vein causes a venous dilatation। अच्छा, तो दिस इज लोकेटेड इन द groin, it is called which of the following, femoral varix, saphenous varix, सेफनस ओपनिंग, सेफनस हर्निया। तो जो सेफनस वेन एंटर हो रही होती है फेमरल वेन में, तो वहाँ पे एक वीनस डायलिटेशन होती है, उसको क्या कहते हैं, सेफनस वेरिक्स। फेमरल हर्निया टिप सेफनो सेफनस वेरिक्स इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस because the veins join each other at the saphenous opening, which is the place where femoral hernia tends to appear. It is an important landmark in workup and in management of varicose veins। तो varicose veins की मैनेजमेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। कौन सी, सेफनस वेरिक्स। इसके बाद है जी हाइपर सेंसिटिविटी टाइप्स एंड देयर मैकेनिज्म्स। टाइप 1 2 3 4